first chapter of class 12th physics is the electric charges and fields, and second one is the electric potential and capacitance. And the first unit with combine these two chapters is the electrostatics. So basically we have to study about electrostatics. Electrostatics. So what does it mean? So this is basically electro means electric charge and static means which is at rest. So electrostatics is basically the branch of physics in which we study about the electric charge which is at rest. Once again, electrostatics is the branch of physics in which we study about the electric charge which is at rest. So first question arises that what is actual mean by charge, electric charge. So first question is what is electric charge? Electric charge. So before this definition, let's relate our previous knowledge to this electric charge. One chapter of the class 11th, that is gravitation. And gravitation and electrostatics are analogous to each other. So in electrostatics, this is gravitation and here is the electrostatics. In gravitation, we study about mass, that which property of matter that apply force on another mass, and that force is the gravitational force. In similar way, we study charge in place of mass in electrostatics. So this is charge. Next one is the gravitational field. Gravitational field, and in electrostatics we talk about electric field. Electric field. Third is the gravitational force. Here we talk about electric force or Coulomb force basically. Electric force. Fourth one is gravitational potential. In electrostatics, we study about electric potential. Electric potentials. And in similar way, in gravitation, we talk about gravitational potential, energy, and in electrostatics, we have to study about the electric potential energy. तो अगर आप क्लास 11th में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं, मास की डेफिनेशन आती है, ग्रेविटेशनल फील्ड आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला टर्म्स बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हैं। इससे पहले हमें मास की डेफिनेशन पता है, इसके वजह से जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो हम जहाँ रहते हैं नेचर में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी समझने के बाद हम समझ लेंगे चार्ज क्या होता है और फिर बाकी चीज़ें बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो नेचर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैटर, दूसरा होता है एनर्जी, रेडिएशन। इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर्स में या फिर आगे आपके सिलेबस में इसके बारे में समझेंगे कि एनर्जी क्या होती है, रेडिएशंस क्या होते हैं, वेव्स क्या होती हैं। अभी हमें समझना है मैटर। तो मैटर का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो बेसिकली तीन तरीके से करते हैं, सॉलिड,
लिक्विड एंड गैसेस। और हमारे कंटेंट में जो भी मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबके पास कुछ ना कुछ मास होता है। सॉलिड हैज़ आल्सो सर्टेन मास, liquid has also certain mass, and gas has also certain mass. And mass is what? That property of matter due to which it apply force on another mass, and that force is the gravitational force. And nature of this force is always attractive. इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट जो अपने चाइल्डहुड में किया है वो ये होता है कि एक पेन को अगर हम अपने बाल में ऐसे रब करते हैं और उसको पेपर के टुकड़े के पास लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी है। वो ये, अगर ये पेन है और यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर है, पीसेस ऑफ पेपर, तो ये दोनों सॉलिड स्टेट में है। इसके पास भी अगर सॉलिड है तो इसके पास कुछ मास होगा, इसके पास भी कुछ मास होगा। अगर विदाउट रबिंग, बिना रब किए पेन को हम पेपर के पीसेस के पास लाते हैं तो क्या देखते हैं, इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो दोनों के पास मास तो है, लेकिन क्या इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? तो इसका आंसर है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक है कि हमको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। क्लियर? पेन और पीसेज ऑफ पेपर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन ये ऐसे चल के ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मीनिंग ये कि वो फोर्स जो है बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर क्यों है? क्योंकि जो फार्मूला हम ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ते हैं m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 के ऑर्डर में होती है। तो इसके अकॉर्डिंग से देखेंगे तो कहेंगे ये फोर्स बहुत कमज़ोर है, इसलिए हमको ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। ओके, अब ये पेन को हम रब करते हैं, और रब करने के बाद आफ्टर रबिंग इसको हम पेपर के पीसेस के पास लाते हैं और देखते हैं कि ये पेपर के पीसेस पेन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो क्या ये जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर कोई दूसरा फोर्स है? तो इसका सिंपल आंसर है कि अगर ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो पहले ही अट्रैक्ट कर लेता, और अगर रब करने के बाद अट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है कि पेपर के पीसेस जो है अट्रैक्ट होकर के पेन के पास आ गए, ये कोई डिफरेंट फोर्स है। इसका मतलब ये कि पहले इसके पास केवल मास था, एक ही प्रॉपर्टी थी, लेकिन रब करने के बाद इसके पास एक और प्रॉपर्टी आ गई जिसके वजह से ये इसको अट्रैक्ट कर लिया। तो मैटर के पास बेसिकली मास ही नहीं होता है, एक तरीके की और प्रॉपर्टी होती है जो कि रब करने के बाद आ रही है। और भी प्रोसेस होंगे जिसके तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी हम जनरेट करेंगे। तो रब करने के बाद जो प्रॉपर्टी आई जिसके वजह से ये दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर लिया, ये वाली प्रॉपर्टी को हम लोग नाम रखते हैं चार्ज। सो मैटर हैज़ टू प्रॉपर्टी, वन इज द मास एंड अनदर इज द चार्ज। सो matter has two property. Matter has two property. One is the mass, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ये जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, इसका नाम रखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि चार्ज के वजह से लग रहा है। नेक्स्ट, कि ये जो मास के वजह से फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ओके, इसके बाद चार्ज की डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। चार्ज is the intrinsic property of matter due to which it apply force on another body. इसके बाद पोलराइजेशन वगैरह समझेंगे, देखेंगे एक्चुअल में फोर्स लगता कैसे, लेकिन अभी के लिए सिंपल डेफिनेशन। ओके, उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक्सपेरिमेंट्स इन
इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो एंशियंट टाइम्स के फिजिसिस्ट ने परफॉर्म किया था वो ये कि यहाँ पे एक ग्लास रॉड रखते हैं, दिस इज बेसिकली ग्लास रॉड, और इसको ऐसे थ्रेड से हमने हैंग कर दिया, किसी वर्टिकल सपोर्ट से उसको सस्पेंड कर दिया, लटका दिया। उसके बाद एक दूसरा ग्लास रॉड यहाँ पे रखते हैं और दोनों को रब करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें अब पता है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी सूटेबल मटेरियल से रब करते हैं तो उसके पास एक नई वाली प्रॉपर्टी मास के बाद आती है जिसका नाम हमने चार्ज रखा है। तो इसको जो है हम सिल्क से रब करते हैं, इसको भी सिल्क से रब करते हैं। और ये दोनों ग्लास रॉड को, ये भी ग्लास रॉड है, एक दूसरे के पास लाते हैं और एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि जब ग्लास रॉड ऐसे हैंग था और दूसरे ग्लास रॉड को जब इसके पास लाते हैं तो देखते हैं कि ये इससे दूर जा रहा है, और ये वाले फोर्स को हम लोग रिपल्सिव बोलते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन बोलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ कि ये जो फोर्स था वो रिपल्शन था, रिपल्सिव फोर्स था। क्लियर? दूसरे एक्सपेरिमेंट में सेम अरेंजमेंट, लेकिन ग्लास रॉड के जगह पे हमने प्लास्टिक रॉड रखा और यहाँ पे एक दूसरा प्लास्टिक रॉड रखा और दोनों को फर से रब किया। फर रब करने के बाद हम देखते हैं कि ये भी प्लास्टिक है, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल से हम रब कर रहे हैं, तो इनके पास जो प्रॉपर्टीज आएगी इस दोनों एक ही तरीके की आएगी। और फिर से हमने एक दूसरे के पास ले जा करके देखा, फिर से फोर्स ऑफ रिपल्शन देखा, तो ये दोनों के बीच में भी जो फोर्स हुआ वो रिपल्सिव फोर्स हुआ। ओके, नेक्स्ट अब की बार एक ग्लास रॉड लेते हैं जिसको हमने हैंग कर दिया, दिस इज ग्लास, और इसको सिल्क से रब किया, और दूसरा लेते हैं प्लास्टिक और इसको फर से हमने रब किया। अब देखते हैं कि ये मटेरियल्स अलग है और जिससे हमने रब किया है वो भी मटेरियल अलग है। तो जब ये दोनों को हम एक दूसरे के पास लेकर के आते हैं तो देखते हैं कि ऐसे ग्लास रॉड हैंग है, प्लास्टिक रॉड को जैसे लेकर के आया, ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए। तो ये वाले फोर्स का नाम हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो फोर्स हुआ वो अट्रैक्टिव फोर्स हुआ। क्लियर? इसके बाद इससे कुछ कंक्लूजन समझते हैं। जैसा कि हमने मास पढ़ा था, तो मास के हम 2 टाइप 3 टाइप नहीं पढ़ते हैं, मास एक ही तरीके का होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मास के वजह से जो फोर्स लगता है वो हमेशा अट्रैक्टिव लगता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों के बीच में रब करने के बाद चार्ज आया और चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स का नेचर अलग अलग है, रिपल्सिव है और फिर अट्रैक्टिव है। इसका मीनिंग ये कि अगर चार्जेज एक ही तरीके के होते या फिर जो मटेरियल है उस पर जो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है वो अगर एक ही तरीके की होती तो ये जो फोर्स है रिपल्सिव होता या फिर अट्रैक्टिव होता। दोनों फोर्सेज नहीं लगते, आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, लेकिन दोनों फोर्सेज लग रहे हैं। इसका मीनिंग ये कि ये दोनों मटेरियल्स पे जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो अलग है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, आपस में फोर्सेस भी लगाता है जिसका नाम इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये जो चार्जेस हैं वो एक ही तरीके के नहीं होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है एक ही तरीके की मास की तरह नहीं होती है, ये 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो अब हम ये नोट कर लेते हैं कि चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में बेसिकली एक कंटेनर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट है, हम बाहर से इसके अंदर देख सकते हैं, और यहाँ पे एक मेटल नॉब लगा होता है, दिस इज मेटल नॉब। ओके, ये मेटल नॉब के बाद यहाँ पे एक थिन फिल्म होती है गोल्ड की जो ऐसे हैंग हुई रहती हैं, वो इजीली एक दूसरे के पास भी आ सकते हैं दोनों फिल्म्स, और दूर भी जा सकते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस हमने किया कि ग्लास रॉड को सिल्क से रब करके यहाँ पे लाया, इसके पास एक प्रॉपर्टी आई जिसको हम चार्ज कर रहे हैं, और यही प्रॉपर्टी ये दोनों फिल्म्स को भी मिली। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि सेम टाइप के अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ग्लास के पास जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी दोनों फिल्म्स को मिल रही है, तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे थे, डाइवर्ज हो रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट में हमने नोट कर लिया कि ग्लास रॉड आने के बाद ये डाइवर्ज होता है, एक दूसरे से दूर जाता है। नेक्स्ट टाइम ये ग्लास को हटा करके हमने प्लास्टिक रखा,
इसको हमने फर से रब किया, इसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई, चार्ज आ गई, और फिर से हम इसको मेटल नाप के पास लेकर के आते हैं। तो देखते हैं कि जो प्लास्टिक के पास प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी दोनों फिल्म्स के पास भी आ गई, और ऐसा होने से फिर से सेम टाइप के चार्जेज हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, डाइवर्ज होंगे। तो दोनों ही केसेस में ये जो फिल्म्स हैं एक दूसरे से दूर जा रहे थे, डाइवर्ज हो रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये करते हैं कि यहाँ पे एक ग्लास रॉड लेके आते हैं जिसको हमने सिल्क से रब किया हुआ है, और दूसरा एक प्लास्टिक रॉड लेकर के आते हैं जिसको हमने फर से रब किया हुआ है। और जब दोनों एक दूसरे के साथ लेकर के आते हैं देखते हैं इसमें कोई डाइवर्जन नहीं हुआ, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं किया, लेकिन हमने दोनों पे चार्ज तो डेवलप किया था रब करके, लेकिन वो चार्ज कहाँ चले गए? तो इसका आंसर है कि ये दोनों चार्जेज मिल करके ज़ीरो हो गए। क्लियर। जो प्रॉपर्टी ग्लास के पास थी उसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी प्लास्टिक के पास थी, इसलिए दोनों मिल करके ज़ीरो हो गए। तो एक आइडिया हमको मिलता है कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें H और O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते हैं, वाटर बनता है, या फिर और भी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन ज़ीरो मैथमेटिक्स में होता है कि हम 2 + -2 करते हैं तो इसका रिजल्ट ज़ीरो आता है। तो सेम तरीके की चीज़ें हैं, सेम फिलॉसफी है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जब मिलाए तो ज़ीरो हो गया। इसका मतलब क्या कि एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने चार्जेस के नाम रख लिए कि एक जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव नेचर का होगा और दूसरा निगेटिव होगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एक दूसरे में मिला दिया जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और एक रूल और हमने समझ लिया कि यहाँ पे सेम टाइप्स के चार्जेस हैं, ग्लास के बीच में फोर्स लग रहा है तो रिपल्सिव हैं, यहाँ पे भी सेम टाइप्स के हैं, प्लास्टिक के बीच में लग रहे हैं तो रिपल्सिव हैं। और फिर एक और हमने बनाया था कि प्लास्टिक और ग्लास के बीच में अलग अलग तरीके के चार्ज हैं तो वो अट्रैक्टिव है। तो इसके लिए एक रूल लिख लेते हैं कि जो लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्ज का मतलब एक ही तरीके के, इस पे ग्लास और ये ग्लास दोनों पे एक ही तरीके की प्रॉपर्टी है, एक ही चार्जेस हैं, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन दिख रहा है। और जब अलग अलग रहेगा, एक प्लास्टिक रहेगा और एक ग्लास रहेगा तो अट्रैक्टिव होगा। तो इसके लिए एक रूल लिखते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड unlike charges attract each other. Okay. ओके तो इस पे जो ग्लास रॉड पे जो चार्ज है उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, और प्लास्टिक पे जो चार्ज होगा उसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं। Okay, so that's all.